As you can see, the question says for the matrix A, which is given as this matrix, the entries are 2, -1, 0, -1, 3, 1, 0, 1, 0. So we can see it is a 3 by 3 matrix because it has 3 rows and 3 columns. So we are given this 3 by 3 matrix and we are asked which of the following is true, and then we are given 4 options. Now it is very important to read the question carefully and not just start solving it. Firstly, we must understand what is the information available in hand and what is the information that we are to find, what is our destination, and then we will decide the pathway to reach that destination. So solving a question does not mean just looking at the question, seeing it once and starting solving it. Actually, solving a question is a process. It is actually a series of steps where firstly we read the question very carefully. Secondly, we interpret what is the given information available in hand. Thirdly, we make a decision that what is it that we want to find. And then the most important thing, we decide the steps that will lead us from the information given to the to find. Okay, so as you can see in this question, a matrix, a 3 by 3 matrix is given to us and we are to find certain equation which holds true for this matrix. Now usually there is a problem that we commit, that is we do not think about the approach to solve the question. We just remember 1 or 2 formulas and we start solving the question with that formulas. Firstly, we have to understand that what is the thing that will lead me from here to here. Okay, so that means we are to form an approach to solve the question. Now when I looked at this question, I understood that this is a question from the topic matrices. And I have been asked to find certain equation which is satisfying this matrix. Now as a beginner, I try to think that what is the concept that will lead me to find an equation for the matrices. Now I remember that in matrices, according to the CSIR NET Physical Sciences syllabus, I have 3 subtopics to be covered. One is the basic algebra of matrices, which involves addition, subtraction, multiplication of matrices and such concepts. Second, I have got the Cayley-Hamilton theorem, and third is the concept of eigenvalues and eigenvectors. Now I start to think that will the algebra help me, because we know algebra is like certain addition, multiplication, subtraction. Now when I look at this question, the algebra of matrices can help me. How? This is the matrix A that is given to me and I have to find, in all the options I can see I need A cube, I need A square, I need A. So what I can do is this, from this A I can find A square, I can find A cube, and then put in each of these options to see whether which of these options satisfy. Okay, this is one of the way by which I can approach the question. Now in this, a common mistake, this is actually written -2 plus 3 minus 1 minus 4, but actually this is -2i plus 3i minus 1i minus 4i. This is actually the thing, and it is not mentioned in the question because we know matrices can be added, matrices can be subtracted. Like you can add bananas to bananas, you cannot add apples to bananas. So similarly, like terms can be added. So matrices can be added to matrices. So this is -2. Ultimately it means -2i. There is no doubt about that. Now this is one way to approach the question. Given A, find A square, find A cube, substitute in each of the options and reach at the correct option. But as you can notice, this is a 3 by 3 matrix. Finding A square will take some time, finding A cube will take more time. So this means this is going to be such a lengthy question if I am going to solve it by finding A square and A cube. And in examination, we do not have that much time. So the best method, or not the best, the one of the better methods to approach this question will be by not using this algebra of matrices, we can use the Cayley-Hamilton theorem. Now you might have studied the Cayley-Hamilton theorem. Basically, what is the statement of the Cayley-Hamilton theorem? Cayley-Hamilton theorem states that every matrix
satisfies its characteristic equation. हर एक मैट्रिक्स जो है वो अपनी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है. दैट मीन्स मेरे को मैट्रिक्स दिया हुआ है ए मैट्रिक्स, और अगर मैं उसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकाल लूँ तो, और मेरे को चाहिए क्या, मेरे को भी तो इक्वेशंस ही गिवन है ऑप्शन में. दैट मीन्स ये क्वेश्चन कैले हैमिल्टन थ्योरम से भी किया जा सकता है. अब कैसे किया जा सकता है, तो मैंने बोला कैले हैमिल्टन थ्योरम कहती है हर एक मैट्रिक्स अपनी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है. इसका मतलब मैं ए मैट्रिक्स के लिए अगर उसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकाल दूं और उनमें से वो एक ऑप्शन से मैच कर जाती है तो वही इक्वेशन मेरा आंसर होगी. नाउ हाउ टू फाइंड द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन. So, to find the characteristic equation for the matrix, we know that we find the characteristic equation by using determinant of A minus lambda I is equal to 0, where lambda is a constant, right? तो हमने बेसिकली इस डिटर्मिनेंट को इवैल्यूएट करना है. तो हमने क्या किया, डिटर्मिनेंट ऑफ A की वैल्यू पुट करी, माइनस लैम्डा आई इज़ द आइडेंटिटी मैट्रिक्स. क्योंकि ए हमारा 3/3 मैट्रिक्स था तो हमने आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी 3/3 लिया है. अगर ए 2/2 होता तो हम आई भी 2/2 लेते. देन हमने इसको सॉल्व करके यहाँ पहुँचे और इस डिटर्मिनेंट को इवैल्यूएट किया. अब यहाँ पे हमारे पास ज़ीरो जिस रो या जिस कॉलम में प्रेजेंट था तो बेटर है कि हम उससे इसको एक्सपैंड करें. अगर किसी और वे से ज़ीरो बन रहे हैं तो हम वो भी बना सकते हैं. बट अगर आप ऐसा कहें कि मैं रो 1 में रो 3 ऐड कर देती हूँ, ये ज़ीरो बन जाएगा, तो ये वाला ज़ीरो डिसरप्ट भी हो जाएगा, राइट. तो हम ज़ीरोज़ तब बनाने का प्रयास करते हैं अगर बाकी कोई ज़ीरो मत हिले और हमें और ज़ीरोज़, जैसे एक ज़ीरो है अगर मुझे 2 या तीनों मिल रहे हैं तब मैं ऐसा ट्राई करूँगी. अब आप इसको ऐड कर भी देंगे, ये ज़ीरो अफेक्ट होगा तो आपको करनी उतनी ही कैलकुलेशन पड़ेगी. ओके, सो इट इज़ अप टू यू. अगर आपको लग रहा है कि ज़ीरोज़ ज़्यादा बन रहे हैं तो डेफिनेटली हमें सिंप्लीफिकेशन करनी चाहिए. देन आपने इसको सॉल्व करा और हम इस इक्वेशन पे पहुंच गए. बट ये इक्वेशन तो लैम्डा की टर्म्स में है और मेरी ऑप्शंस में जितनी भी इक्वेशंस हैं वो ए की टर्म में है. तो यहाँ पे हमारी कैले हैमिल्टन थ्योरम काम आती है, क्योंकि कैले हैमिल्टन थ्योरम कहती है कि हर एक मैट्रिक्स अपनी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है. इसका मतलब यहाँ लैम्डा को हम ए से रिप्लेस कर सकते हैं क्योंकि ए मैट्रिक्स अपनी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा. तो लैम्डा इज रिप्लेस्ड बाय ए एंड वी गेट दिस ऑप्शन. फिर हम देखते हैं कि क्या ये ऑप्शन क्वेश्चन में दी गई ऑप्शन से मैच कर रही है. तो देखिए हमारा आंसर आया है a³ इज इक्वल टू 5a² माइनस 4a माइनस 2. दिस इज एक्चुअली माइनस 2i एज आई टोल्ड यू. तो ऑप्शंस में ये फर्स्ट ऑप्शन के साथ मैच कर रहा है. इसका मतलब हमारा ऑप्शन 1 करेक्ट है. सो दिस इज द सेकेंड मेथड टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. पहला क्या था कि मुझे कुछ भी नहीं पता तो मैं सिंपल a² निकालूं, a³ निकालूं, ऑप्शंस में डाल के देख लूं. पर क्योंकि वो लंबा था, आपने देखा इससे हमारे पास 2 स्टेप्स में आंसर आ गया कि आप कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालो, वो लैम्डा की टर्म्स में आएगी. लैम्डा को ए से रिप्लेस कर सकते हैं बाय यूजिंग कैले हैमिल्टन थ्योरम. नाउ देयर इज अ थर्ड मेथड, अ क्विक फॉर्मूला टू सॉल्व दिस क्वेश्चन एज वेल. नाउ व्हाट इज़ दैट क्विक फॉर्मूला. आपने देखा कि जब भी हमें कोई मैट्रिक्स गिवन होगा और हमें कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशंस निकालने की ज़रूरत पड़ेगी तो हम कैसे निकाल सकते हैं. एक तो बाय सिंपल अलजेब्रा, या क्विक मेथड इज कि आप डिटर्मिनेंट ऑफ a माइनस लैम्डा आई निकाल लो, वहाँ पे लैम्डा को a से रिप्लेस कर दो. नाउ अ थर्ड मेथड विच इज़ अ बेटर मेथड, इवन बेटर मेथड, दैट इज वी कैन डायरेक्टली यूज सर्टेन इक्वेशन to find out the characteristic equation and then replace lambda by a. So अगर आपको 2/2 मैट्रिक्स गिवन है, मतलब जिसमें 2 रोज और 2 कॉलम्स हैं, उसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालने के लिए हम ये इक्वेशन यूज़ कर सकते हैं. 3/3 मैट्रिक्स की कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालने के लिए हम ये इक्वेशन यूज़ कर सकते हैं. अब आप सोचेंगे कि ये इक्वेशंस तो बहुत बड़ी हैं, इनको याद करना बहुत मुश्किल है. तो लेट मी टेल यू, इनको याद करना बहुत ईजी है. लेट मी एक्सप्लेन यू फॉर अ 2/2 मैट्रिक्स. आप देखो जब आपका मैट्रिक्स 2/2 है तो यहाँ लैम्डा की हाईएस्ट डिग्री 2 है, तो लैम्डा की उतनी ही डिग्री है जितना मैट्रिक्स का ऑर्डर है. अगर 2/2 है तो 2 आएगा, अगर 3/3 है तो 3 आएगा. आप बोलेंगे क्या ये 3/4 के लिए भी एप्लीकेबल है. तो लेट मी टेल यू, ये सिर्फ स्क्वायर मैट्रिसेस में ही हम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशंस यूजुअली निकालने को आती हैं. सो 2/2 मैट्रिक्स है,
आपने यहाँ पे लैम्डा की पावर 2 लिखी, 3/3 मैट्रिक्स था तो लैम्डा की पावर 3 लिखी गई। देन नेक्स्ट स्टेप इज, अगर यहाँ हम प्लस से स्टार्ट करते हैं हमेशा, तो आगे यहाँ प्लस था तो यहाँ माइनस आएगा, फिर नेक्स्ट टाइम प्लस, नेक्स्ट टर्म होती तो माइनस, एंड सो ऑन। ठीक है जी। उसके बाद है लैम्डा स्क्वायर से स्टार्ट किया, लैम्डा की डिग्री 1 रिड्यूस हो गई, लैम्डा पावर 1, लैम्डा पावर 0 मीन्स कांस्टेंट, तो आगे नहीं चलेगा, राइट। यहाँ लैम्डा क्यूब, लैम्डा स्क्वायर, लैम्डा एंड लैम्डा पावर 0 यानी कांस्टेंट आएगा। देन इज प्लस माइनस प्लस, प्लस माइनस प्लस माइनस, ये 3 चीज़ें हो गई। स्टार्ट किससे करना है, साइंस ऑल्टरनेटिव लगाने हैं, और कितनी टर्म्स आएंगी, 2/2 में लैम्डा स्क्वायर से स्टार्ट हुआ, लैम्डा पावर 1, लैम्डा पावर 0, तो 3 टर्म्स आई, 3/3 में 4 टर्म्स आएंगी, राइट। अगर यहाँ पे 5/5 होता तो 6 टर्म्स आएंगी, और किससे स्टार्ट होगा, अगर 5/5 है तो लैम्डा 5, लैम्डा 4, लैम्डा 3, लैम्डा 2, लैम्डा 1 एंड लैम्डा 0 मीन्स कांस्टेंट। कांस्टेंट हर केस में आपका क्या होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ द गिवन मैट्रिक्स। ठीक है, तो आपने यहाँ पे देखा साइन यहाँ पे बदल सकते हैं, क्योंकि यहाँ प्लस से स्टार्ट होगा, फिर ऑल्टरनेटिव साइंस आएंगे। एंड देन जो टर्म बची, इट इज रिप्लेस्ड बाय ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स। ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स क्या होता है, ट्रेस इज द सम ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ द मैट्रिक्स। जैसे अगर 2/2 मैट्रिक्स है, आपको फॉर एग्जांपल ए मैट्रिक्स ये दिया है, इट इज 2 1 -1 0, तो ट्रेस क्या होगा, सम ऑफ दीज प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स, तो 3 होगा इसका। नेक्स्ट आपको है कि अगर 3/3 मैट्रिक्स दिया है तो यहाँ ट्रेस ऑफ ए टर्म आ गई, बीच वाली टर्म कैसे आएगी, इट विल बी 1/2 ट्रेस ऑफ ए। ट्रेस ऑफ ए मतलब जो भी ए मैट्रिक्स दिया है उसका ट्रेस, यानी उसके प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स का सम, एंड देन उस ट्रेस का स्क्वायर करना है। मतलब पहले आप ट्रेस निकालोगे, मान लीजिए ट्रेस 5 आया, 5 स्क्वायर विल बी 25, माइनस क्या है, ट्रेस ऑफ ए स्क्वायर। ए स्क्वायर मतलब ए का स्क्वायर करेंगे, उसका ट्रेस निकालेंगे। तो ये वाली टर्म इफेक्टिवली आपको याद करनी पड़ रही है, बाकी सारी टर्म्स बहुत इजीली बन जाती हैं। अब आप बोलेंगे कि इसमें भी तो टाइम लग ही जाएगा, फिर मुझे ए स्क्वायर निकालना पड़ेगा। अब जैसे आप इसी क्वेश्चन की एग्जाम्पल लें जो उन्होंने हमें दिया था क्वेश्चन में, ये हमारा क्वेश्चन था। आप देखो यहाँ ए क्यूब आ गया, ये सब टर्म्स इज इक्वल टू उधर चली जाएंगी, तो इन ऑप्शन से मैच होगी। ट्रेस ऑफ ए लैम्डा स्क्वायर, अगर यहाँ पे ट्रेस ऑफ ए निकालें सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स, तो वो 5 आ रहा है, तो मुझे क्लियरली दिख गया कि 5 ए स्क्वायर आना चाहिए। तो पहली बात तो जिन ऑप्शंस में 4 और 8 था वो तो डायरेक्ट ही क्रॉस हो गई, बची ये 2 ऑप्शंस, इन दोनों में से कोई एक सही है। तो मैंने उसके बाद देखा कि ये वाली टर्म भी अलग है, ये वाली टर्म भी अलग है। ये वाली टर्म लैम्डा वाली निकालने के लिए मुझे ए स्क्वायर निकालना पड़ेगा, मैंने सोचा अभी रुक जाती हूँ, पहले कांस्टेंट टर्म निकालती हूँ। कांस्टेंट टर्म क्या है, ये जब उधर जाएगा तो ये पहली बात प्लस हो जाएगा, और डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो मैं इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकाल लेती हूँ। जब मैं इसका डिटर्मिनेंट निकालूंगी तो आप क्या देखेंगे कि इसका डिटर्मिनेंट ये वाली ऑप्शन से मैच कर जाएगा। दैट मीन्स इसका डिटर्मिनेंट जो है वो 2 आएगा, ठीक है, -2 आएगा, जो उधर जाके इस तरीके से, मतलब ये वाली टर्म उधर जाके -2i बन जाएगी। दैट मीन्स कहने का मतलब क्या है कि इस एक क्वेश्चन को हम 3 मेथड से कर सकते हैं। वन इज बाय सिंपल अलजेब्रा विच इज़ वेरी लेंथी, सेकेंड इज बाय यूजिंग द केले-हैमिल्टन थ्योरम विच इज़ बेटर मेथड, एंड थर्ड इज अगर आपको ये फॉर्मूलाज याद हैं सो इट इज़ इवन अ क्विकर मेथड, राइट। नाउ कम्स अ सिमिलर क्वेश्चन जिसमें आपको ए मैट्रिक्स दिया है, दिस इज अ 2/2 मैट्रिक्स, यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ए क्यूब। अगेन ये इक्वेशन का ही क्वेश्चन है, तो फिर से आपके पास वही मेथड्स हैं, आप अलजेब्रा से कर सकते हो, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन से कर सकते हैं, एंड आप फॉर्मूला से भी कर सकते हैं। सो दिस क्वेश्चन प्लीज ट्राई इट योर सेल्फ एंड कमेंट द ऑप्शन। थैंक यू।